आई कैन नॉट एक्सप्रेस द इन फीलिंग्स की कितना अच्छा लग रहा है। एंड इधर से अगर हम लोग देखें तो देखो कितना बड़ा एक्सपेंस दिख रहा है लेक का। लेकिन ये हमने एक हिडन स्पॉट खोज लिया है, एक बैनियन ट्री पीछे और उसके सामने ये फार सा व्यू। छोटा सा हिल के ऊपर चढ़ गया हमें। वाओ, हिल टॉप व्यू पॉइंट। What's up everybody, welcome back to another video। and इस वीडियो में हम लोग बाहर घूमने जाने वाले। फाइनली लॉकडाउन के बाद वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव अराउंड 100 किलोमीटर्स आउटसाइड बैंगलोर। आज काफ़ी फन डे होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है एंड वी विल कवर दैट पार्ट वेयर वी आर गोइंग। It's a surprise now. When we reach there, you will see. I mean, actually, it's not a surprise. You'll see maybe in the title only that where we are going. See you guys. Let's start the driving now. Welcome you all. We are going to the Vatada Hosahalli Lake, and it is around 100 kilometers from Bangalore. We did start our trip from Koramangala. So if you are starting from Koramangala, you will need to take the airport route, which is the shortest one. The route goes through MG Road, Carbon Park, following up into the Yelahanka Airport Road. The drive is pretty amazing in this route with views of the Jagpur Aerodrome. Yeah. We will go there sometime as well, just for a paid micro ride flying in that aircraft and all. Also, the Google Maps are pretty accurate for this route, so you can follow that as well. Once you reach the airport toll and pay, you can take the straight road towards Hyderabad in place of taking the airport road. There were two tolls exactly for us, one the airport toll and the other just a few kilometers after that. And yes, we had FASTag in our car, so no contact swift payment was done. पहली बार हम लोग फास्टैग का यूज कर रहे हैं। जब से फास्टैग लगाया उसके बाद से तो लॉकडाउन आ गया, तो हम लोग बाहर भी जा नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर में हाँ, बस वही इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर का यूज करने। Although the FASTag has been mandated, you still have cash counters in case if you haven't added them in your car. But believe me when I say FASTags are super helpful and fast. It avoids long queues in the toll, so better have it plugged in. After the tolls, the road is pretty amazing throughout, a nice picturesque 6-lane highway, and it keeps getting better and better and better as we reach closer to our destination. So we are just taking a small little break here in the roadside tea stall to have some local tea. 3 दिन बाद ये हाईवे पे आए हैं, ये हाईवे का मज़ा लेने के लिए रोड साइड में रुक के चाय पी रहे हैं। थोड़ा सा वो चाय का फील आ जाएगा एंड थोड़ा सा हमने सीनिक ब्यूटी वगैरह भी कैप्चर कर ले रहे हैं। ब्यूटीफुल स्माइल है। What's up, man? What's up, man? And one more thing, the last patch is a single lane, but the car can move easily in. There aren't any muddy or difficult patches in between, which a four-wheeler cannot handle. As we reach near the lake, an awesome undiscovered patch comes while driving, which goes in for an awesome drive-through, or you can even stop and click a few pictures. We just stopped around that. It is just around 12 kilometers before the lake, a big banyan tree with some glimpses of the lake. बहुत सुंदर सा हमें बड़ा सा बैनियन ट्री दिखा है, तो उसी बैनियन ट्री में हम लोग फोटो खींचने के लिए रुक गए हैं। The lake is only about 12 kilometers away. यहीं से थोड़ा बहुत तो छोटा छोटा व्यूज दिखने को मिल रहा है। ये देखो ना, यही आगे जाके बड़ा सा एक्सपेंस है एंड दिस इज द बैनियन ट्री। एंड उसके सामने से ये छोटा सा एंट्री एरिया जहाँ से ये लेक का थोड़ा सा पॉइंट दिखता है। एंड इधर से अगर हम लोग देखें तो देखो कितना बड़ा एक्सपेंस दिख रहा है लेक का। लेकिन ये हमने एक हिडन स्पॉट खोज लिया है, एक बैनियन ट्री पीछे और उसके सामने ये फार सा व्यू। भाई साहब खतरनाक दिख रहा है ये।
चलो अब फाइनल लोकेशन अपना लेक पे चलते हैं। इतने दिनों बाद ये ट्रिप कर रहे, इतना अच्छा लग रहा है। यू आर गेटिंग टू फील द फ्रेश सीनरी, फ्रेश एयर, मतलब एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस टू। पूरे ट्रिप भर में मैं मास्क पहन के गाड़ी चलाया। आई गेस दिस इज द न्यू नॉर्मल with the mask on, driving all the way. It's just a small road trip, 100 kilometers from my side, लेकिन इतने महीने बाद आया, लाइक एक आज़ादी का फीलिंग मिला मेरे को। एंड द थिंग इज कि हम अभी तक लेक पहुंचे भी नहीं है जो हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन द एंटायर ट्रिप थ्रू आउट सीइंग दैट सीनिक रोड्स, ऑसम इंडियन हाईवेज, आई कैन नॉट एक्सप्रेस द इन फीलिंग्स की कितना अच्छा लग रहा है। चलो फाइनल लोकेशन पे चलते ताकि सनसेट होने से पहले हम लोग पहुंच पाए एंड मस्त गोल्डन आवर के शूट्स ले सके वहाँ पे। And then just a few meters ahead you get a mesmerizing 5-minute drive with water levels up to the road. Definitely an unexplored place to go nearby. एक छोटा सा इनलेट है जहाँ से वॉकवे है, कोई कार पार्किंग वगैरह तो ऐसा है नहीं, तो हमने ऐसे ही रोड साइड पे कार पार्क किया है कंकड़ पत्थरों के बीच में से चलते हुए। गोट्स बुला रहे। शायद ये पहला वाला जो स्पॉट है जहाँ हम लोग आए, दिस इज़ नॉट द मेन स्पॉट। गूगल मैप्स में दिखा रहा है कि एक आगे जाके एक और लंबा सा एक्सपेंस आएगा, तो हम लोग वॉक करके वहीं जा रहे हैं। होपफुली वहाँ से और बेटर व्यू मिले। पत्थर के अंदर से चढ़ चुड़ के जाओ। ओह माय गुडनेस। छोटा सा हिल के ऊपर चढ़ गया हमें। हिल टॉप व्यू पॉइंट, चढ़ के पत्थर के ऊपर बीच रोड पे गाड़ी खड़ा करके वहाँ पे अपना गाड़ी है, वहाँ से ऐसे चल चल के इधर से चढ़ के इतने ऊपर आ गए। दुनिया के ऊपर चढ़ के यहाँ पे थोड़ा ब्यूटी का, नेचर का मज़ा ले लेते हैं। सच ए नाइस लेक सराउंडेड विथ माउंटेन्स। जो भी आवाज़ आ रहा है वो है गोट्स का और कुछ नहीं। रोड से एक आध गाड़ियाँ निकल रही है उसका है। अब उतरते, हाँ, आई नीड टू फिगर आउट कि वापस कैसे उतरेंगे। उतरने का सीन, हाँ भाई, टाइम लैप्स लेने का तो टाइम नहीं था हमारे पास, तो टाइम लैप्स किसी और दिन ले लेंगे। अभी तो उतर के वापस चलते हैं। हाँ, ऐसे स्लाइड एरिया में से उतरने में ना डर लगता है, लेकिन जूते हैं सही तो टेंशन कुछ नहीं। आजकल मैं राइमिंग करना भी सीख गया हूँ खूब अच्छे से, ठीक है। एंड वही राइम करते करते उतर भी गया मस्ती से। देखो फिर से राइम कर गया भाई साहब। वॉकिंग अलॉन्ग विथ मी शैडो। वो पानी वाले स्पॉट पे जाएंगे, वहाँ पे सनसेट देखेंगे। दैट वाज एन एक्सट्रीमली सुपर्ब सीनिक स्पॉट एंड वहाँ पे टाइम लैप्स बनाएंगे। Once we reached the lake, there was a confusion with the Google Maps where it showed us it was a narrow inlet to walk and was not the actual spot. We even got confused the second time when we went further but found a picturesque rock but didn't really find the exact place of which the photos were on the maps. It was only then when we were returning that we realized that the place was much before the point where the maps pointed us, and we were really happy to figure it out finally. Oh wow. So this is the place which we had to come to. Lakeside, an entire expanse of water body and overlooking a mountain. बाप रे, पूर्णिका को देखो कि कितने अंदर चली गई। नाइस मूड फॉर एडवेंचर। ऐसे है तो लेकिन गिरगिट तो दिखाए मेरे को अभी तक।
लेकिन क्या ही करेगा गिरगिट। कुत्ता मेरे तरफ देख रहा है। चलो भाई, अरे भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? मेरे को छोड़ के मत भाग। भाग गया भाई डर के। अभी लोग कचरा कर दिए, देखो क्या है ये, कचरा करने से बाज नहीं आते लोग। So that was an eventful day out here today. We got some nice shots interacting with the nature. It felt like we are back again. The things are coming back to normal slowly but steadily. Obviously this is a new normal with mask on. You have to move on everywhere. There are restrictions everywhere. It feels like it's a new beginning to the your life has got a new beginning after this COVID, and all your plans for 2020 came to haste, but nevertheless धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। इतने दिनों बाद हम लोग बाहर आए, एक अच्छा सा ट्रिप रहा। एंड ये लेक खोजने में हमारी लग गई थी। हमें लगा कि एंड तक हमें ये लेक मिलेगा नहीं, लेकिन फाइनली हमें ये लेक मिल गया। ठीक है गाइस, इसी पार्ट पे हम अपना ये व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं फ्रॉम दिस नाइस लेक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू आउट। और अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर माइक का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है तो उस 2 दिन से मैं माइक खोजने की कोशिश कर रहा हूँ अपना घर पे, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो जैसे ही मिलेगा मैं अपना माइक लगा के अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना चालू करूँगा। टिल देन द माइक आई एम यूजिंग इट्स ओनली थ्रू माई कैमरा माइक, सो pardon if the mic goes a little bit wrong, but other than that everything should be fine. So thank you guys. पूरा गाड़ी हिला दिया मार मार के।